بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ سابق دور میں صاحب اقتدار کو اگر کھانسی بھی آتی تو علاج کے لیے باہر چلے جاتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سابق دور میں اسمبلی ممبرز، وزراء، وزیر اعظم اور ان کی فیملی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے علاج باہر کرواتے تھے۔ جب تک وزراء سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں کروائیں گے، اسپتال ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کا کامسٹیک ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے خطاب۔ مزید کہا کہ آج ہمارے صاحب اقتدار چاہیں بھی تو باہر علاج نہیں کروا سکتے۔ وزیر اعظم نے طبی مصنوعات کی نمائش بھی دیکھی۔ پاکستان نے N95 ماسک مقامی سطح پر تیار کر لیا۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ 1100 روپے والا ماسک اب 90 روپے میں ملے گا۔ ہینڈ سینیٹائزرز اینڈ ڈی انفیکٹڈ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ جلد اپنے وینٹیلیٹرز بھی تیار کر لیں گے۔ آگے جانے کے لیے میڈ ان پاکستان کی بنیاد رکھنا ہوگی۔ تاجروں کے لیے ٹیکس میں مزید سہولت کا اعلان۔ آؤٹ پٹ ٹیکس 10 کی بجائے 5% کر دیا گیا۔ سہولت FBR سے منسلک پرچون فروشوں کو حاصل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کے نرالے فیصلے۔ ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں کٹوتی، وکلاء کو گرانٹ جاری کر دی۔ ڈاکٹروں کی 2 دن کی تنخواہ کورونا فنڈ کی مد میں کاٹی گئی۔ ینگ ڈاکٹرز اور نرسوں کا تنخواہ کی کٹوتی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا ہیلتھ پروفیشنلز کی تنخواہوں کی کٹوتی قبول نہیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بات کا نوٹس لے لیا اور حکم دیا کہ کٹوتی نہ کی جائے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا امکان۔ اوگرا نے پیٹرول 20 روپے 68 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز دے دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے 94 پیسے کمی کی سفارش۔ مٹی کا تیل 44 روپے 60 پیسے اور لائٹ ڈیزل 24 روپے 97 پیسے کی کمی کی تجویز دی گئی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کا حتمی اعلان کرے گی۔ PIA کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی۔ امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک نے پچھلے ہفتے باضابطہ درخواست دی تھی۔ مراسلے کے مطابق PIA کا 1 ماہ کے دوران 12 پروازیں چلانے کا اعلان۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ ساہیوال میں ماہ رمضان کے آتے ہی اشیاء خورد و نوش میں ہوش ربا اضافہ، عوام پریشان۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی اشیاء خورد نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک طرف لوگ لاک ڈاؤن میں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں اور دوسری طرف رمضان مبارک کے آتے ہی فروٹ اور سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی۔ عام آدمی کے لیے اشیائی ضروریات کو خریدنا بہت مشکل ہے۔ اس قدر ملک کو مشکل اور طرح طرح کی پریشانیوں اور لاک ڈاؤن کے باعث اجتماعی مشکلات اور اوپر سے رمضان مبارک کے ایام میں مہنگائی، آخر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تمام مکتب فکر افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ساہیوال آصم رئیس سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اشیاء خورد نوش کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز ساہیوال۔ تحصیل خیرپور ناتھن شاہ میں ٹڈی دل کروڑوں کی تعداد میں پہنچ گئی۔ کاشتکار شدید پریشان۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں ٹڈی دل نے تیار فصلوں پہ دھاوا بول دیا۔ خیرپور ناتھن شاہ کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل نے کپاس،
चना और दूसरी सब्जियों की फसलों को चट कर लिया। काश्तकारों ने रवायती तरीके से टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ़ है। काश्तकारों का मुतालबा है हुकूमत सिंध से और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी टिड्डी दल को भगाने के लिए स्प्रे किया जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। अल खिदमत फाउंडेशन लोअर दीर ने मजदूर तबके के साथ ताउन जारी रखते हुए 180 मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया। तफसीलात जानते हैं मुनीर ज़ादा की इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन लोअर दीर ने कोरोना वायरस से मुतासिरा मजदूर तबका और गरीब खानदानों के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखते हुए यूनियन कौंसल कोटो के 180 मुस्तहिक घरानों में फूड पैकेज तकसीम किए। फलाही इदारा अल खिदमत फाउंडेशन ने लोअर दीर में कोरोना वबा में दुखी अफराद की खिदमत का सिलसिला जारी रखते हुए तासीरी बलाम्बट के गाँव कोटो के 180 खानदानों में फूड पैकेज तकसीम किया गया। फूड पैकेज इलाके की गरीब, यतीम और लॉकडाउन से मुतासिरा गरीब तबका अफराद में तकसीम किया गया। फूड पैकेज में आटा, चावल, चीनी, घी, चाय और दालें शामिल थे। अल खिदमत फाउंडेशन लोअर दीर के सदर फजल महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में अल खिदमत फाउंडेशन ने मुखय्यर हजरात की ताउन से जिला दीर लोअर में 70,000 खानदानों में सियासी वाबस्तगी से बलातर फूड पैकेज तकसीम कर दिए। उन्होंने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है और मुखय्यर हजरात ने अल खिदमत फाउंडेशन पर जिस इत्मीनान का इजहार किया वो काबिल सताइश है। कैमरा टीम के साथ मुनीर ज़ादा, हक न्यूज़, तेमरगरा, लोअर दीर। डिग्री की खातून का कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में। डिग्री के जलानी मोहल्ले की रिहायशी खातून सलमा ज़ोजा मोहम्मद आसिफ खोसो जो गुज़श्ता 20 रोज़ से SIUT अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए टेस्ट किए गए जो पॉजिटिव आए। खातून ने तिमारदारी के लिए इसके अहले खाना मोहम्मद अकरम खोसो, रमज़ान खोसो और सफदर खोसो अस्पताल में साथ रहे और कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डिग्री पहुँचे, जिसकी इतला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री निसार अहमद मेमन, SHO डिग्री आफ्ताब रीन, डॉक्टर आजम कईम खानी, डॉक्टर इलियास जैद जिलानी मोहल्ले पहुँचे और तीनों अफराद के सैंपल हासिल करके तीनों अफराद को घर में आइसोलेशन में रहने का पाबंद किया गया, जबकि घर के बाहर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। इस सिलसिले में MS डॉक्टर हबीबुल्लाह मेमन ने साफियों को बताया कि तीनों अफराद के सैंपल हासिल करके तस्दीक के लिए महकमा सेहत के ज़िम्मेदारान को भिजवा दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद तीनों अफराद का इलाज शुरू किया जाएगा। उन्होंने शहरियों और खसूसन अहले मोहल्ला से अपील की है कि वो अपने घरों में रह कर कोरोना वायरस के वबा से बचाव बाबत हुकूमत इक़दाम के पासदारी करें ताकि हम सब मिलकर इस वबा को शिकस्त दे सकें। ज़ैनुल आबदीन, हक न्यूज़, टिगरी। सिवन शरीफ में लॉकडाउन से परेशान मजदूर और मेहनत कश अफराद भूख और बदहाली की वजह से सड़कों पर निकल आए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। जी सेवन शरीफ लॉकडाउन से परेशान मजदूर मेहनत के अफराद के खानदान और भूख बदहाली के बायस सड़कों पर निकल आए। दर्जनों ख्वातीन और बच्चों का भूख और अफलास के बायस मुख्तरकार ऑफिस के सामने एहतजाज। सरकारी राशन लेने के लिए आए ख्वातीन के एहतजाज पर मुख्तरकार ने अपना ऑफिस छोड़कर फरार हो गया। मुख्तरकार और तहसीलदार ने सरकारी राशन अपने मनपसंद लोगों में तकसीम कर दिए गए। बच्चे बड़े सब भूख से बदहाल हैं और माजियाम हैं, घरों में फाके पड़ गए हैं। मुजाहिरीन ख्वातीन का मौक़िफ़। कैमरामैन फराज महल के साथ मोहम्मद अली मेमन, हक न्यूज़, सेवन शरीफ। मीरवा गुरजानी के नज़दीक ज़ईफ़ शहरी खुदा बख्श खासखेली पर वहशियाना तशद्दुद। तफसीलात जानते हैं मज़हर हुसैन गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी नज़दीक खुम्बड़ी स्टॉप पर साबका मरकजी सदर असगरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुब्दार अली खासकली और उनके भाइयों ने ज़ईफ़ बुजुर्ग खुदा बख्श खासकली पर वहशाना तशद्दुद किया। इत्तलात के मुताबिक बासर जवाबदार असगरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साबका सदर हुब्दार अली खासकली अचानक इमाम बारगाह के मुतवल्ली खुदा बख्श खासकली पर वहशाना तशद्दुद किया, जिसके बाद पुलिस पर फरियाद लेकर आए पुलिस स्टेशन मीरवा गोरचानी ने लेटर बनाकर रूरल हेल्थ सेंटर मीरवा गोरचानी भेज दिया। उसके बाद बुजुर्ग ज़ईफ़ ने मीरवा गोरचानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बासर जवाबदार पर FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। हक न्यूज़, मीरवा गोरचानी। अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां माह रमज़ान शुरू होते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान का चांद नज़र आते ही मुनाफाखोर सरगर्म। रमज़ान करीम जैसे महीने में फल, सब्जियां और गोश्त गरीब अफराद के पहुँच से दूर हो गया। खजूर 400 रुपये फ़ी किलो, केला 80 रुपये दर्जन, खरबूज 50 रुपये में दस्तियाब, लीमू 300 रुपये किलो, आलू 40 रुपये, प्याज 80 रुपये तक मिल रही है और बड़ा गोश्त 450 रुपये और मछली 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है।
देखें, जैसे ही रमज़ान आया है तो व्यापारों ने सब्जियां और जो दीगर अशिया खुदनोश है उनकी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि खुदारा जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, वो गोश्त तो नहीं खा सकता है, खुदारा कम से कम जो सब्ज़ी के रेट हैं उन पर कंट्रोल करें। माह रमज़ान महीना आते ही जो मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म हो गए हैं। सब्ज़ी फलों के साथ जो गोश्त की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगे हैं। गोश्त तो दूर की बात है, हम गरीब लोग हैं जो सब्ज़ी भी नहीं खा सकते, 2 वक्त की रोटी खाना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत से हम ये अपील करते हैं खुदारा इस कमर तोड़ महंगाई पर कंट्रोल पाकर गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। इंतजामिया की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ ताहाल कोई एक्शन नज़र नहीं आ रही। शहरियों ने सिंध हुकूमत से और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ फिदाउस ज़ैन मरी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है।